یہ ZBC کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین. یہ پروگرام ہر روز رات 8 بجے ہمارے YouTube چینل پر پیش کیا جاتا ہے. 24 جولائی کے سیربین سے جاوید چودھری کا سلام. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف مزید بڑے فوجی حملوں پر غور کر رہے ہیں. ٹرمپ کی حوثیوں کو بھی سخت وارننگ. کہا حوثی حملوں کا ذمہ دار ایران کو سمجھا جائے گا. امریکہ نے سعودی عرب کے سول جوہری معاہدے کو ابراہیم ایکارڈ سے مشروط قرار دے دیا. اتنا کہنا کافی ہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک کے ساتھ پرامن مقاصد کے لیے جوہری توانائی کا جو بھی معاہدہ ہم کریں گے اس میں ایسے حفاظتی اقدامات شامل ہوں گے جو یہ یقینی بنائیں گے کہ اس سے ہتھیاروں کے پروگرام میں تبدیل نہ کیا جا سکے. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ ہمیں ثالث سے کوئی مسئلہ نہیں, مسئلہ واشنگٹن کا نقطۂ نظر ہے. جبکہ پاسداران انقلاب نے تنبیہ کی ہے کہ ایران پر حملے میں استعمال ہونے والا برطانوی فضائی اڈہ جائز هدف ہوگا. من از همجا اومدم وزارت خارجه و تا 3 روز شاید ما کاملا قطع بودیم مثلا فقط دنبال این بودیم که ببینیم کی زنده است کی شهید شده. حتی از رئیس جمهور هم عمان کا خطے میں استحکام کے حصول کے لیے سفارتی کوششوں کا اعلان. میناب سکول حملے میں 120 بچوں کی ہلاکت کے 4 ماہ بعد بی بی سی نے وہاں کیا دیکھا. دم در مدرسه که رسیدم ازدحام جمع. جب میں اسکول کے گیٹ پہ پہنچی تو وہاں لوگوں کا ہجوم تھا. وہ سب طلبہ کے والدین تھے جو ننگے پاؤں اسکول کی طرف بھاگے چلے آ رہے تھے. میں نے سوچا وہ اسکول کیوں آ رہے ہیں, یہاں تو کوئی نہیں ہے, سب بھاگ چکے ہیں. مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ سب ملبے کے نیچے دبے ہوئے تھے. مدرسه اینجا که کسی نیست, فکر می‌کردم که همشون فرار کردن, نمیدونستم که همشون زیر آوارن. انڈیا میں کاکروچ جنتا پارٹی کا احتجاج. سونم وانگ چک نے 26 روز بعد بھوک ہڑتال ختم کر دی. انہوں نے لکھ کر آشواسن دیا ہے, ایک تو یہ کہ جو ہمارے ودیارتھی اور یووا جنتر منتر پر شانتی پورن آندولن کر رہے ہیں یا جو 20 جولائی کو سنسد چلو میں بھاگ لے رہے تھے ان پر کوئی قانونی کارروائی FIR اتیادی نہیں کریں گے. جانیے پاکستان میں پیٹرول کی روزانہ قیمتوں کا تعین عوام کے لیے آسانی ہے یا پریشانی؟ بڑا کنفیوزنگ ہے, بہت کنفیوزنگ ہے. رات کو ابھی اور ڈلوایا تو صبح آپ کو اور مل رہا ہے, اس سے اگلے دن آپ کو اور مل رہا ہے. کنفیوزنگ تو ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہمیں اتنی پرابلم ہے جتنا انہوں نے کریٹ کر دی. ایشیا مصنوعی ذہانت ڈیٹا سینٹرز کا نیا مرکز, لیکن اس کی قیمت کیا ہوگی؟ اگر آپ ملیشیا کو دیکھیں تو اس ملک میں بہت اضافی بجلی ہے. پھر انڈیا کے حصے جیسے مغربی انڈیا میں گرین پاور بہت زیادہ دستیاب ہے, تو ہمیں اس مارکیٹ میں بہت خوشگوار ہے. تعلیم کی کوئی عمر نہیں. دیکھیے ماں اور بیٹے کا متاثر کن سفر. While the mother is getting the diploma in data science, آدتیہ راگیش کپاڈیا کہتے ہیں کہ تعلیم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. IIT مدراس کے کانوکیشن میں اسی بات کی ایک خوبصورت مثال دیکھنے کو ملی. ملیے ابو ریحان سے جو آن سکرین نکاح خواں ہیں اور آف سکرین جیولر. ڈرامے کا سین یہ تھا کہ اس کا نانا ہاتھ میں پستول لے کے آ گیا, کہنے لگا نہیں ہوگا یہ نکاح, اور پستول ہاتھ میں ہے. اب میرے چہرے کا ایکسپریشن چاہیے. تو پھر میں ایکسپریشن دے رہا ہوں کہ کیا ہو گیا بھائی. اس کے علاوہ مزید خبریں بھی آج کے سیربین میں شامل رہیں گی, مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کی انتظامیہ ایران کے خلاف دوبارہ بڑے پیمانے پر فوجی کارروائی شروع کرنے کے امکان پر سنجیدگی سے غور کر رہی ہے, جن میں ایسے حملے بھی شامل ہو سکتے ہیں جو ماضی میں کیے گئے آپریشن ایپک فیوری سے بھی زیادہ وسیع اور شدید ہوں. امریکی خبر رساں ادارے ایکسیوس کو دیے گئے انٹرویو میں ٹرمپ نے کہا کہ اگرچہ ایک بڑے فوجی آپریشن کا جائزہ لیا جا رہا ہے, تاہم ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا کیونکہ اس کے ممکنہ نتائج انتہائی اہم اور دور رس ہو سکتے ہیں. اس لیے ہر پہلو کا احتیاط سے جائزہ لیا جا رہا ہے. دوسری جانب 2 امریکی حکام نے بھی تصدیق کیا کہ ایران کے خلاف کسی نئی فوجی کارروائی کا اب تک کوئی باضابطہ فیصلہ نہیں ہوا ہے اور نہ ہی امریکی افواج کو اس حوالے سے کوئی نئے احکامات جاری کیے گئے ہیں.
ट्रंप ने दावा किया कि अगर जरूरत पड़ी तो इसराइल फौरी तौर पर किसी भी कार्रवाई में शरीक हो सकता है। ताहम उनका कहना था कि अमेरिका ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए किसी दूसरे मुल्क का मोहताज नहीं और तन्हा भी कार्रवाई करने की सलाहियत रखता है। अलबत्ता अगर इसराइल इसमें शामिल हुआ तो ईरान की जानिब से जवाबी रद्द अमल का इम्कान भी मौजूद है। अमेरिकी सदर ने मजीद कहा कि ईरान मुज़ाकरात का ख़्वाह जरूर है लेकिन अभी किसी मुआहदे के लिए तैयार नहीं, क्योंकि ईरानी क़यादत ने हालिया सिफारती तजावीज़ कबूल नहीं की और उनके बकौल अभी उन्हें इतना नुकसान नहीं पहुंचा कि वो शराइत मानने पर आमादा हों। इसी दौरान सदर ट्रंप ने यमन के ईरान नवाज हुसी बागियों को भी सख्त वार्निंग देते हुए कहा है कि अगर बहरे अहमर में तिजारती या सऊदी जहाज़ों पर हमले दोबारा किए गए तो अमेरिका इसकी बराह रास्त जिम्मेदारी ईरान पर आयद करेगा। ट्रूथ सोशल पर जारी अपने बयान में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका गुज़िश्ता साल आलमी तिजारत में रुकावट डालने और बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने पर हुसियों के खिलाफ भरपूर फौजी कार्रवाई कर चुका है, जिसके बाद उन्होंने निस्बतन मोहतात रवैया इख्तियार किया था। ताहम अब इतलात हैं कि हुसियों ने दोबारा हमले शुरू कर दिए हैं और गुज़िश्ता शब सऊदी अरब के 2 जहाज़ों को भी निशाना बनाया गया है। ट्रंप का कहना था कि चूंकि हुसी ईरान के हिमायत याफ्ता और उसके प्रॉक्सी गिरोह हैं, इसलिए आइंदा किसी भी हमले की सूरत में ईरान और हुसियों दोनों को सख्त फौजी नताइज का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिकी सदर ने मशरिक़ वस्ता से मुतल्लक एक और अहम ऐलान करते हुए कहा कि अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान मुजव्वज़ा सिविल जौहरी मुआहिदा सिर्फ उसी सूरत में मंजूर किया जाएगा जब सऊदी अरब इब्राहिम इकार्ड में शामिल होने पर आमादा होगा। ट्रंप ने अपने बयान में वाज़ेह किया कि ये मुआहिदा सिर्फ पुरअमन और गैर फौजी मकासद के लिए होगा और इसमें यूरेनियम की अफजूदगी की इजाज़त शामिल नहीं होगी। उनके मुताबिक इस नौयत के सिविल जौहरी प्रोग्राम दुनिया के कई ममालिक बाशमूल मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान के पास पहले से मौजूद हैं। ताहम सऊदी अरब के साथ इस मुआहिदे की हतमी मंजूरी को इब्राहिम इकार्ड में शमूलियत की शर्त से मुंसलिक किया गया है। ट्रंप का यह भी कहना था कि अमेरिका पुरअमन सिविल जौहरी तनसीबात की मुखालफत नहीं करता, लेकिन खित्ते में सिफारती ताल्लुकात के फ़रोग और इसराइल के साथ ताल्लुकात की बहाली भी इस पॉलिसी का अहम हिस्सा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी ऐलान किया कि अब से किसी भी जहाज़ पर हमले की सूरत में होने वाले नुकसान का हर्जाना ईरानी असासों से अदा किया जाएगा। अपनी सोशल मीडिया साइट ट्रूथ सोशल पर अमेरिकी सदर का कहना है कि आज के बाद से जहाज़ों, उनके सामान तिजारत, कार्गो या इससे मुतल्लक किसी भी चीज़ को पहुँचने वाले तमाम नुकसानात का मुआवजा ईरान के उन फंड से अदा किया जाएगा जो अमेरिका के कब्जे और कंट्रोल में हैं। उनका कहना है कि इस फैसले का इतलाक आइंदा इतला तक होगा। सदर ट्रंप का कहना है कि ये हर्जाने बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में यही सही कदम है। दूसरी जानिब ईरान ने अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के खिलाफ अपनी धमकी आमेज पॉलिसी मजीद सख्त करते हुए बरतानिया को खबरदार किया कि अगर उसकी सरजमीन या फौजी तनसीबात ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल हुई तो ऐसे तमाम अड्डे ईरान के लिए जायज़ फौजी हदफ होंगे। जबकि पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान पर हालिया हमलों में बरतानिया के फेयरफोर्ड फिजाई अड्डे पर तैनात B-1 बमबार तैयारों का इस्तेमाल किया और इल्ज़ाम आयद किया कि बहरे हिंद में मौजूद अमरीकी बहरी जहाज़ों के क्रूज मिसाइलों के ज़खायर कम होने के बाद इन्हीं तैयारों के जरिए हमले जारी रखे गए। ताहम इन दावों की आज़ाद ज़राए से ताहाल तस्दीक नहीं हो सकी। ईरान की वजारत खारजा ने भी अमरीकी हमलों में बरतानिया के अड्डों या सहूलियात के इस्तेमाल की इजाज़त की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि ऐसी किसी भी मामनत को जारियत और जंगी जराइम में शराकत तस्वर किया जाएगा। उधर पासदारान इनकलाब ने यह दावा भी किया कि नसर 2 ऑपरेशन की 26वीं लहर के दौरान उसने अल उदेरी में अमरीकी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर यूनिट एहलकारों की रिहाइश गाह और फ्लाइट कंट्रोल टावर को निशाना बनाया, जिसमें मुतअद्दिद अमरीकी एहलकार हलाक या जख्मी हुए। ताहम इस दावे की भी आज़ादाना तस्दीक सामने नहीं आई। दूसरी जानब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान मुमकिना इराकी सालिसी की कोशिशों पर रद्द अमल देते हुए कहा कि ईरान को सालिसों की कमी नहीं बल्कि असल मसला अमेरिका की पॉलिसी है। उनका कहना था कि मुख्तलिफ ममालिक पहले ही दोनों मुल्कों के दरमियान पैगामात के तबादले में किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन असल रुकावट वाशिंगटन का गैर मंतकी, तोसी पसंदाना और तसल्लुत पसंदाना रवैया है। अराक़ची ने वाज़ेह किया कि ईरान को किसी नए सालिस या पैगाम रसानी की ज़रूरत नहीं, बल्कि अमेरिका को अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी करना होगी। उधर सल्तनत ओमान ने खित्ते में बढ़ते हुए तनाव के पेश नज़र सिफारती कोशिशें तेज़ करने का ऐलान करते हुए कहा है कि वो सऊदी अरब, यमनी फरीकैन और अक़वाम मुत्तहिदा के खसूसी एलची बराए यमन के साथ मिलकर सियासी अमल को दोबारा फ़ाल बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि खित्ते में अमन व इस्तेकाम बहाल किया जा सके।
ओमानी वज़ारत ख़ारजा ने बहरा अहमर में कशीदगी बढ़ाने वाले इक़दामात से गुरेज और बैनुल-अक़वामी जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत पर भी जोर दिया है। इसी दौरान कुवैत ने भी अपनी सरहदी सलामती से मुतल्लक एक तशवीशनाक वाक़े की तस्दीक करते हुए बताया कि इराक से मुत्तसिल सरहदी इलाके को मुतअद्दिद मरतबा दुश्मन ड्रोन हमलों का निशाना बनाया गया है। कुवैती वज़ारत दिफा के मुताबिक हमलों से माली नुकसान हुआ, ताहम किसी जानी नुकसान या ज़ख्मी होने की इतला नहीं मिली, जबकि सिक्योरिटी इदारों ने फौरी तौर पर सूरत हाल पर काबू पाने के लिए इक़दामात शुरू कर दिए हैं। कुवैती फ़ौज ने मुल्क की सरहदों के दिफा और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल अलर्ट रहने का अज़म ज़ाहिर किया है। बाद कुवैती वज़ारत ख़ारजा ने एक सख्त बयान में ईरान और उसके हिमायत याफ्ता अनासर पर इन हमलों का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि ये कार्रवाइयाँ कुवैत की खुद मुख्तारी, बैनुल-अक़वामी कानून, अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और सलामती कौंसल की मुतअल्लिका करारदादों की संगीन खिलाफवर्जी है। कुवैत के मुताबिक ऐसे हमले न सिर्फ उसकी कौमी सलामती बल्कि पूरे खित्ते के अमन व इस्तेकाम के लिए बराह रास्त खतरा है और इन्हें किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। इसी दौरान अमरीकी फ़ौज की मरकज़ी कमान सेंटकॉम का कहना है कि उसने मुसलसल 13वीं रात ईरान पर हमले किए हैं। सेंटकॉम की जानिब से जारी बयान में दावा किया गया है कि इन हमलों में ईरानी फ़ौज के कमांड मराकज़, ड्रोन ज़ख़ीरा करने की तनसीबात, मवासलाती नेटवर्क्स, साहिली निगरानी की तनसीबात और ईरानी बहरी सलाहियतों को निशाना बनाया गया है। अमरीकी फ़ौज के मुताबिक इन हमलों का मकसद आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए ईरान से लाहक खतरे को मज़ीद कम करना है। सेंटकॉम का यह भी दावा है कि पासदारान इनकलाब की हालिया कार्रवाइयों के बावजूद आबनाए हुर्मुज़ जहाज रानी के लिए खुली हुई है और अमरीकी फ़ौज की मुआवनत के साथ तिजारती जहाज बदस्तूर आबनाए हुर्मुज़ से आज़ादाना तौर पर गुजर रहे हैं। सामीन, जंग का सबसे बड़ा बोझ अक्सर आम शहरी और खसूसन बच्चे उठाते हैं। ईरान के शहर मीनाब में एक प्राइमरी स्कूल पर होने वाला हमला दर्जनों ख़ानदानों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गया। इस हमले में 120 बच्चों समेत 156 अफराद हलाक हुए, जबकि स्कूल की एक मुअल्लिमा और मुतासिरा ख़ानदान आज भी इस अलमनाक दिन की यादों के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। देखिए BBC की ये खसूसी रिपोर्ट, जिसमें साने के ऐनी शाहिदीन, मुतासिरा ख़ानदानों और तहकीकात से सामने आने वाली तफसीलात पेश की गई हैं। इन दीवारों के बीच कभी बच्चों का शोर गूंजता था, लेकिन अब ये क्लासरूम्स खामोश हो चुके हैं। आमना नदीमी ने स्कूल में 6 साल तक पढ़ाया। आप इसे स्कूल नहीं कह सकते। यहाँ सिर्फ दीवारें हैं जिनसे मौत, गम और उस खून की बू आती है जो यहाँ बहाया गया था। माहिरीन का कहना है कि सबूतों से ज़ाहिर होता है कि जंग के इब्तदाई घंटों में एक अमरीकी हमले ने जनूबी ईरान के शहर मिनाब में शजरा तैयबा स्कूल को निशाना बनाया। हुक्काम चाहते थे कि हम यहाँ आएं क्योंकि ये हमला दुनिया के सामने ईरान के केस का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। हमले को महीनों गुजर चुके हैं, लेकिन वो अब भी मलबे को हटाकर हलाक होने वालों की बाकियात तलाश कर रहे हैं। हमले ने स्कूल की सबसे ऊपर वाली मंजिल को निशाना बनाया। इससे लड़कियों के क्लासरूम्स नीचे लड़कों के क्लासरूम्स पर आ गिरे। जब मैं स्कूल के गेट पर पहुंची तो वहाँ लोगों का हुजूम था। वो सब तलबा के वालिदैन थे जो नंगे पांव स्कूल की तरफ भागे चले आ रहे थे। मैंने सोचा वो स्कूल क्यों आ रहे हैं? यहाँ तो कोई नहीं है, सब भाग चुके हैं। मुझे मालूम नहीं था कि वो सब मलबे के नीचे दबे हुए थे। ये उन लोगों के चेहरे हैं जो इस हमले में हलाक हुए। 156 अफराद, जिनमें से 120 बच्चे थे। रज़ा मौके पर पहुंचने वाले पहले इमरजेंसी वर्कर्स में से एक थे। मैंने अपने एक रिश्तेदार को देखा। वो इल्तिजा कर रहा था कि बस मेरे बच्चे को ढूंढ दो, मेरे बेटे को ढूंढ दो। वो बहुत मुश्किल वक्त था और मुझे मालूम था कि कोई जिंदा नहीं बचा है, लेकिन मैं उन्हें ये नहीं बता सका कि आपका बेटा अब जिंदा नहीं है। हमले की आज़ादाना तहकीकात में इस बात पर सवाल उठाए गए हैं कि क्या स्कूल को पासदाराने इनकलाब के एक अड्डे के करीब होने की वजह से निशाना बनाया गया था। अमेरिका ने अभी तक अपनी तहकीकात के नताए जारी नहीं किए हैं, लेकिन रज़ा का इस बात पर इसरार है कि यहाँ बरसों से कोई फौजी सरगर्मी नहीं हुई है। पहले हुआ करती थी, लेकिन अब नहीं। स्कूल के करीब फौज और महकमों की जगह कई साल पहले बदल दी गई थी। यहाँ गम एक मामूल बन चुका है। बच्चे अपने भाइयों और बहनों की कब्रों के पास बड़े हो रहे हैं।
मासूमा ने इस हमले में अपनी 9 साला बेटी सताइश को खो दिया। मदरसे में स्कूल खत्म हो चुका था, वहाँ सिर्फ धुएं और बच्चों के बालों की बू थी। मैंने एक हाथ देखा, एक पाँव देखा, उनके टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। यहाँ मौजूद बहुत से वालिदैन की तरह उनका गम भी अब गुस्से में बदल चुका है। ट्रम्प बर्बाद हो जाए, वो इन बच्चों के खून में डूबकर गर्क हो जाए। इस मुल्क के लोग जो इस मुल्क की आमराना क़यादत पर बटे हुए हैं, इस स्कूल पर हमले से एक गम के रिश्ते में जुड़ गए हैं। ये इस बात की एक तल्ख याद दहानी है कि हर जंग अपने साथ जानी नुकसान की एक दर्दनाक कीमत लाती है। इंडिया के समाजी कारकुन सोनम वांगचुक ने तालीमी इस्लाहात का मुतालबा करने वाले नौजवान मुजाहिरीन की हिमायत में 26 दिन तक जारी रहने वाली भूख हड़ताल ख़त्म कर दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में वांगचुक ने कहा कि उन्होंने ये कदम मुख्तलिफ शराइत पर तवील मुज़ाकरात के बाद और मुल्क में मुमकिन तशद्दुद को रोकने के लिए उठाया गया है। 59 साला वांगचुक ने काकरोच जनता पार्टी यानी CJP की हिमायत में हड़ताल की थी, जिसके अरकान इंडिया के वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का भी मुतालबा कर रहे हैं। वांगचुक को शनिचर के रोज जबरदस्ती एहतजाज के मुकाम जंतर मंतर से अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था, जहां वो अपनी भूख हड़ताल जारी रखे हुए थे। वांगचुक शदीद गर्मी में भूख हड़ताल पर बैठे थे और सिर्फ नमक और पानी इस्तेमाल कर रहे थे। नशरियाती इदारे NDTV के मुताबिक वांगचुक ने इस शर्त पर अपनी भूख हड़ताल खत्म की है कि हुकूमत जंतर मंतर पर एहतजाज करने वालों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। इंडिया के रियासती और सेहत के वज़रा ने अस्पताल में वांगचुक से मुलाकात की थी। वांगचुक के भूख हड़ताल खत्म करने के फैसले पर रद्द अमल जाहिर करते हुए CJP के बानी अभिजीत डिपके ने एक्स पर लिखा कि हमें इत्मीनान और खुशी है कि सोनम सर ने 26 दिन बाद अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है, लेकिन साथ ही उनका ये भी कहना था कि जंतर मंतर पर काकरोच जनता पार्टी का पुरअमन एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक वजीर तालीम इस्तीफा नहीं देते। बुध के रोज गुड़गांव के अस्पताल ने एक बयान में कहा था कि सोनम वांगचुक को इंतहाई निगहदाश्त वार्ड यानी ICU में दाखिल कर लिया गया है। बयान में कहा गया कि उनका इलाज मुख्तलिफ शोबों के डॉक्टरों पर मुश्तमिल एक टीम की निगरानी में जारी है। इस वक्त उनकी हालत मुस्तहकम है। उन्हें दिया जाने वाला तमाम इलाज उनकी बाखबर रजामंदी के मुताबिक किया जा रहा है। याद रहे कि बुध के रोज CJP के बानी अपोजिशन जमातों के दर्जनों अरकान पार्लिमान, समाजी कारकुनों और मारूफ शख्सियात ने एक बार फिर वांगचुक से अपनी भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की थी। उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है, एक तो ये कि जो हमारे विद्यार्थी और युवा जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं या जो 20 जुलाई को संसद चलो में भाग ले रहे थे, उन पर कोई कानूनी कार्रवाई FIR इत्यादि नहीं करेंगे। ऐसा बहुत होता है ऐसे आंदोलनों में, तो ये हमने आश्वासन लिया है कि ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। दूसरा ये कि जो पेपर लीक के इस हादसे में मृत हुए बच्चे हैं 20 से भी ज़्यादा, उन सब को उपयुक्त कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, मुआवज़ा दिया जाएगा उनके घरों को। और तीसरा ये कि इस मुद्दे पर और शिक्षा और परीक्षाओं में जवाबदेही सरकार में लाने के बारे में संसद में पूरी तरह से वार्ता होगी, बहस होगी कि आगे से ऐसा ना हो और जो हुआ है उस पे पूरी जवाबदेही हो। पाकिस्तान की हुकूमत ने कहा है कि पेट्रोल की कीमतों में उतार चढ़ाव अब सिर्फ 15 रोज बाद नहीं बल्कि रोजाना की बुनियाद पर भी देखा जा सकता है। हुकूमत के इस नए निज़ाम का मकसद आलमी मंडी के मुताबिक फौरी रद्दोबदल करना बताया जा रहा है, लेकिन इसके बाइस आम शहरियों, ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता अफराद और कारोबारी तबके को किन मुश्किलात का सामना है।
देखिए तुरहब असगर की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान में पेट्रोल और उसकी प्राइसेस को लेकर खासी गैर यकीनी सूरत हाल है और कल भी जो है तकरीबन 6 से 7 रुपए जो है पेट्रोल को महंगा किया गया और उसके साथ साथ ये फैसला हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से किया गया था चंद रोज़ पहले कि हम रोज़ाना की बुनियाद पे इन प्राइसेस का तयन करेंगे और नई कीमतों को मुकर्रर करेंगे और उसके बाद जो है ये फ़र्क हमें नज़र आना शुरू हुआ। अभी तक कमी तो एज सच बड़ी मैसिवली नहीं हुई है पर इजाफा ज़रूर मुसलसल हो रहा है। बहुत से लोग हैं जो इस रोज़ाना की बुनियाद पे कीमतें बढ़ने या कम होने से काफ़ी परेशान भी हैं और उन्होंने हमसे बात की और इस चीज़ का जिक्र भी किया। बड़ा कंफ्यूजिंग है, बहुत कंफ्यूजिंग है। रात को अभी और डलवाया तो दूसरी सुबह आपको और मिल रहा है, उससे अगले दिन आपको और मिल रहा है। कंफ्यूजिंग तो है। आई डोंट थिंक सो कि हमें इतनी प्रॉब्लम है जितना इन्होंने क्रिएट कर दी हुई है। 15 दिन का रखा था, उसके बाद हफ्ते का आ गया, अब डेली बेसिस पे होना शुरू हो गया। तो अब ये कुछ समझ नहीं आ रही कि इंसान बजट कैसे बनाए अपना। क्रूड ऑयल जो है वो $1 भी नहीं बढ़ता और आप अपना कितना कितना ऊपर बढ़ा लेते हैं। ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਲੈਣ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ था कि महंगा ही हो रहा है। से वो ऐलान होता है ना कि जी वो जहाज में मिसाइल लग गया, ये हो गया, वो साथ ही प्राइस बढ़ा देते हैं। हुकूमत का ये कहना है कि ग्लोबल मार्केट पे पेट्रोल की जो भी उतार चढ़ाव होता है कीमत में, हम चाहते हैं कि वो आवाम तक फौरी तौर पे पहुंचे, जिसकी वजह से ये फैसला किया गया कि हफ्ता नहीं बल्कि हर रोज़ ये कीमत जो है मुकर्रर की जाएगी। पेट्रोल कितना डलवा लेंगे, मैं टैंकी फुल करवा लूँगा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन निकल जाएंगे। फील्ड का काम है हमारा, और ये तो मतलब कितने दिन चल जाएगा। ये गैर यकीनी सूरत हाल सिर्फ लोगों तक ही महदूद नहीं है। पेट्रोल पंप एसोसिएशन वालों ने भी ये ऐलान किया था कि वो गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए पेट्रोल पंप को बंद कर रहे हैं क्योंकि उनके जो मुज़ाकरात थे गवर्नमेंट के साथ वो नाकाम हो गए थे और मुज़ाकरात में जो है ये उनकी डिमांड्स थी कि ये रोज़ाना की बुनियाद पे जो मुकर्रर की जा रही है कीमत, उससे उनको खासा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो तय करने में मसला आ रहा है। और ना सिर्फ ये बल्कि कल के रोज़ जब ये ऐलान किया गया और एक्सपेक्टेड था रात 12 बजे के बाद जो है ये पेट्रोल पंप बंद कर दिए जाएंगे मुल्क भर में, तो गवर्नमेंट की तरफ से और उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया कि उन्होंने मज़ीद 2 हफ्ते के लिए ये जो एहतजाज है या ये जो हड़ताल है इसको मौखर कर दिया है। पंप पे आते हैं लोग तो उनको कहते हैं आगे से पेट्रोल नहीं, कई तो ऐसे होते हैं वो हमें भी गालियाँ देना शुरू कर देते हैं, हुकूमत को भी गालियाँ देते हैं, खुद भी परेशान होते हैं। कई तो ऐसे होते हैं उनके पास बिल्कुल भी नहीं होता, वो फिर मोटरसाइकिल जो अपनी रेड के लेके जाते हैं तो उनको बड़ी परेशानी होती है और हमें मुफ्त की गालियाँ पड़ जाती हैं। ज़्यादातर लोग इस मामले पे ये तनकीद करते हैं कि हुकूमत की तरफ से ग्लोबल मार्केट में होने वाले कीमतों के उतार चढ़ाव से ज़्यादा ये लेवी की मद में लिए जाने वाली वो कीमत है जो हुकूमत पेट्रोल की वजह से वसूल करती है। और अब दुनिया की बाकी अहम खबरों पर एक नज़र समरा फातिमा के साथ। रूस ने अमेरिका से मुतालबा किया है कि वो यूक्रेन को हथियार भेजना बंद करे। ताहम रूसी वजीर खारजा सर्गेई लावरोव ने अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो को बताया कि मॉस्को अब भी इस तनाज़े के सिफारती हल के लिए तैयार है जो अपने 5वें बरस में दाखिल हो चुका है। उधर सदर ट्रंप ने लड़ाई ख़त्म करने की कोशिश के तहत कीव को दी जाने वाली अमेरिकी फ़ौजी इमदाद में नुमायां कमी कर दी है। इस हफ्ते शुमाल मशरक़ी इंडिया, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में शदीद बारिशों के नतीजे में कम से कम 80 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि सैलाब से ज़रई ज़मीनों, बुनियादी ढांचे और अवामी सहूलियात को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचा है। इंडिया की शुमाल मशरक़ी रियासत आसाम में कम से कम 10 अफराद हलाक हो गए हैं और 11 अज़ला में 6,50,000 से ज़्यादा अफराद शदीद बारिशों से मुतासर हुए हैं। ओपन एआई ने तस्लीम किया है कि उसके चंद जदीद तरीन मसनूई ज़हानत के मॉडल्स एक हिफाजती तजुर्बे के दौरान काबू से बाहर हो गए और उन्होंने एक और कंपनी के सिस्टम को हैक कर लिया। चैट जीपीटी बनाने वाली इस कंपनी के मुताबिक उसका एजेंट एक महदूद और हिफाजती माहौल में आजमाया जा रहा था, मगर कमज़ोरियाँ तलाश करने के बाद वो इन हदूद से निकलने में कामयाब हो गया। मसनूई ज़हानत यानी AI की तेज़ रफ्तार तरक्की ने दुनिया भर में सरमायाकारी की नई दौड़ शुरू कर दी है और एशिया इस दौड़ का अहम मरकज़ बनता जा रहा है। मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और दीगर ममालिक में अरबों डॉलर के AI डाटा सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं। ताहम इस तेज़ रफ्तार तरक्की के साथ तवानाई, पानी और माहौलियात से मुतल्लिक अहम सवालात भी जन्म ले रहे हैं, क्योंकि AI डाटा सेंटर्स को चलाने के लिए गैर मामूली मिकदार में बिजली दरकार होती है। देखिए मलेशिया से सुरंजना तिवारी की रिपोर्ट, जिसे पेश कर रही हैं नाजिश फैज।
आप जो भी AI से चैट करते हैं, जो भी ऐप इस्तेमाल करते हैं, जो भी फिल्म आप स्ट्रीम करते हैं, वो कहीं ना कहीं प्रोसेस हो रही होती है। ये सब तेजी से इस तरह की इमारतों में हो रहा है। जैसे जैसे मसनूई जहानत हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन रही है, इसी तरह कंप्यूटिंग पावर की मांग भी बढ़ रही है। इसके तेजी से बढ़ते हुए मराकज़ में से एक यहाँ है, जौहर मलेशिया में। ये पूरा इलाका जंगलात की ज़मीन और बागात हुआ करता था, लेकिन अब जहाँ तक नज़र जाती है ये डाटा सेंटर्स हैं जो या तो मुकम्मल तौर पर काम कर रहे हैं या तामीर हो रहे हैं। और यहाँ खड़े होकर आपको वाकई एहसास होता है कि डिजिटल इकॉनमी का मुस्तकबिल यहाँ एशिया में बनाया जा रहा है। प्रिंसटन डिजिटल ग्रुप का कहना है कि खित्ता AI की बढ़ती हुई आलमी मांग को पूरा करने के लिए अच्छी जगह है। The large part of the Gen AI जनरेटिव AI का एक बड़ा हिस्सा, जिसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहते हैं, वो ट्रेनिंग मॉडल अमेरिका में तैयार हो रहे हैं। लेकिन हमने पिछले चंद सालों में देखा है कि इन मॉडल्स को मुकामी मार्केट्स में इस्तेमाल के लिए बेहतर करना होता है। तो इस वजह से ये डिमांड बढ़ रही है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स और जेन AI को इन्हीं ममालिक में मुकामी कंटेंट और जुबानों पर ट्रेन करें। इस वजह से हम ये काम एशिया में आते हुए देख रहे हैं। is really what's driving. We are seeing that use case come to Asia. डेटा सेंटर्स बहुत ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं। आप ऐसी रुकावटों से कैसे निपटते हैं? If you look at Malaysia as a country, is अगर आप मलेशिया को देखें तो इस मुल्क में बहुत इजाफी बिजली है। फिर इंडिया के हिस्से जैसे मगरबी इंडिया में ग्रीन पावर बहुत ज्यादा दस्तयाब है, तो हमें इस मार्केट में बहुत खुशगवार हैरत हुई। अगर आप मेलबर्न, सिडनी, जौहर, मुंबई, इंडिया में चेन्नई को देखें, हैदराबाद जो एक और बड़ा शहर है, तो ये बड़े डेटा सेंटर्स के क्लस्टर्स हैं। और जोहरी तवानाई की बहाली के बाद अब जापान में भी डेटा सेंटर्स की हिमायत बढ़ रही है। we are seeing a significant support for data centers in Japan as well. तालीम हासिल करने के लिए उम्र की कोई हद नहीं होती, और अगर सीखने का जज्बा जिंदा हो तो ख्वाब किसी भी मरहले पर हकीकत बन सकते हैं। भारत के मारूफ तालीमी इदारे IIT मदारस के कन्वोकेशन में एक ऐसा ही मुतासिर कुन मंजर देखने को मिला, जहां 45 साला जगीशा टेलर और उनके बेटे आदित्य ने एक साथ डाटा साइंस एंड एप्लीकेशंस प्रोग्राम की डिग्री हासिल की। बरसों बाद दोबारा तालीम का सफ़र शुरू करने वाली इस माँ की कहानी न सिर्फ हौसले और अज़म की मिसाल है, बल्कि हर उस शख्स के लिए भी एक पैगाम है जो ये समझता है कि सीखने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। देखिए नाइला ख्वाजा की ये ख़ुसूसी रिपोर्ट। While the mother is getting the diploma in data science, आदित्य रागेश कपाडिया कहते हैं कि तालीम हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती। IIT मद्रास के कॉन्वोकेशन में इसी बात की एक खूबसूरत मिसाल देखने को मिली, जब एक माँ और बेटा एक ही स्टेज पर अपनी डिग्री लेने के लिए साथ आए। Because we didn't understand the moment itself. हम उस लम्हे को समझ ही नहीं पाए थे, क्योंकि मुझे लगा था कि आदित्य पहले जाएगा। फिर जब हम एक ही कॉन्वोकेशन रूम में साथ बैठे तो मुझे लग रहा था कि अब लोग कम होते जा रहे हैं, सबको डिग्रीज मिल रही हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि हमें एक साथ डिग्री मिलने वाली है। तो वो बहुत ही खुशगवार लम्हा था और सब लोग एक साथ सराह रहे थे। 45 साला जिगीशा टेलर ने कुछ अरसे पहले अपने टीचिंग करियर से ब्रेक लिया था। You have to sit for जब पढ़ाई के लिए बैठना पड़ता था, कम से कम 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे या 4 घंटे रिकॉर्डेड लेक्चर सुनने और देखने के लिए, तो वो पढ़ने की आदत छूट चुकी थी। मैं पहले खुद लेक्चर दिया करती थी, लेकिन मैंने इम्तिहान की तैयारी काफ़ी वक्त से नहीं की थी। कुछ लोग पूछ रहे थे कि आपको डिग्रीज क्यों चाहिए, तो मैं बस यही कहती थी कि मैं अब कुछ अलग करना चाहती हूँ और इसीलिए मैं बस सीख रही हूँ। मुझे जॉब मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, या शायद मैं जॉब कर भी लूँ। दोनों की रोजमर्रा की जिंदगी का निजाम भी कुछ अलग था। जिगीशा सुबह सबसे पहले उठकर पढ़ाई करती ताकि घर के काम शुरू होने से पहले अपना वक्त निकाल सकें। आदित्य कोर्स कुछ मराहिल पहले ही मुकम्मल कर चुके थे, इसलिए इम्तिहानों और वाइवा में वो अक्सर अपनी माँ की मदद करते थे। और दिलचस्प बात ये थी कि कभी कभी दोनों के दरमियान ग्रेड्स का मुकाबला भी हो जाता था। Bumpy ride, but it was fun. सफर थोड़ा मुश्किल था, लेकिन मजा आया। उन्होंने कोर्स पास कर लिया था, तो मेरे अंदर थोड़ा सा कंपटीशन का जज्बा आ गया था, जैसे मुझे भी उनसे कॉम्पीट करना पड़ेगा क्योंकि वो एक अच्छी स्टूडेंट थी। आदित्य, who scored better? Of course. ऑफ कोर्स मेरी माँ के नंबर्स मुझसे बेहतर आए।
کانوکیشن سے پہلے جب کورس کوآرڈینیٹر کو ان کی کہانی کا پتہ چلا تو انہوں نے انتظام کیا کہ ماں اور بیٹے کو ایک ساتھ اسٹیج پر بلایا جائے. IIT مدراس نے بھی اس تجویز کو قبول کیا اور دونوں نے ایک ہی لمحے میں اپنی ڈگریز حاصل کی. کانوکیشن کی یہ تصویر اس دن کے یادگار ترین لمحوں میں شامل ہو گئی. اکثر والدین کے لیے گریجویشن کا دن اپنے بچوں کی کامیابی کا جشن ہوتا ہے، لیکن اس فیملی کے لیے یہ دو نسلوں کے ایک ساتھ سیکھنے اور آگے بڑھنے کا دن بن گیا. کبھی زندگی میں ایک چھوٹا سا اتفاق بھی نئے راستے کھول دیتا ہے. کراچی سے تعلق رکھنے والے ابو ریحان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا. ایک مارننگ شو میں شرکت نے ان کے لیے شو بیس کی دنیا کے دروازے کھول دیے، جہاں انہیں ڈراموں میں نکاح خاں کا کردار ادا کرنے کی پیشکش ہوئی. آج وہ ایک طرف اپنے جیولری کے کاروبار کو سنبھال رہے ہیں تو دوسری جانب مختلف ڈراموں میں نکاح خاں کے منفرد کردار سے ناظرین کی توجہ حاصل کر رہے ہیں. دیکھیے براق شبیر اور محمد نبیل کی یہ دلچسپ رپورٹ. ڈرامے کا سین یہ تھا کہ اس کا نانا ہاتھ میں پستول لے کے آ گیا، کہنے لگا نہیں ہوگا یہ نکاح، اور پستول ہاتھ میں ہے. اب میرے چہرے کے ایکسپریشن چاہیے. تو پھر میں ایکسپریشن دے رہا ہوں کہ کیا ہو گیا بھائی. حضرت آپ کا جو بھی فیصلہ ہے کر گزرے، 2 نکاح اور بھی پڑھانے ہیں، مجھے دیر ہو رہی ہے. آج سے کوئی 35-38 سال پہلے ایک چینل تھا، وہ نیا اس نے مارننگ شو شروع کیا تھا. تو انہوں نے ایز اے جیولر ہم کو کہا کہ آپ آئیں، جیولری ڈسپلے کریں، اس کے بارے میں سوال جواب کریں. لائیو کال لیتا تھا میں. تو جب وہ میری تصویر الحمدللہ جب مارننگ شو میں آئی تو یہ ہوا کہ آپ جیسے لوگوں کی نگاہ میں آ گئی کہ بھئی یہ تو بڑے میاں کیمرے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کیمرے کو فیس کر سکتے ہیں، ان سے یہ کام کرا لو. تو پھر وہ نکاح وغیرہ کرانے شروع کر دیے. کوئی 27-28 سال ہو گئے، 80-85 پتہ نہیں کتنے ڈرامے نکاح پڑھایا ہے. میں 8 سال بحرین میں رہا، پاکستان کلب بحرین میں ہم ڈرامے کرتے تھے یہ وہ. تو وہ کیمرہ میری اندر موجود ہے. نکاح بعوض حق مہر 50,000 روپے سے کہہ رہا ہے جلوہ. اچھا بہت سارے ڈرامے ایسے ہوتے ہیں جس میں کہ پھٹا ہو جاتا ہے، اس کا نانا آ گیا، یہ ہو گیا، اور یہ نکاح نہیں ہوگا، فلاں ہوگا، یہ ہوگا. تو اس کے میرے ایکسپریشن ہوتے ہیں. پھر کیا کر رہے ہیں بھائی، نکاح ہو رہا ہے. نکاح خوان کا کردار عام طور پہ بھاگنے دوڑنے لڑنے کا تو ہوتا نہیں. مولوی جو ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے بس، اور وہ وہ پڑھتا ہے، یہ ہوتا ہے آپ کو یہ نکاح قبول ہے نہیں ہے، سائن کر دیں، دعا کرتا ہے. امید پاشا بنت کمال پاشا، آپ کا نکاح فرجات خان بہادر ول شجاعت خان بہادر کے ساتھ. دیکھیں اب جیسے کوئی ڈائریکٹر ہے یا پروڈیوسر ہے، وہ دیکھتا ہے میرے موبائل وغیرہ میں، اس میں ٹی وی میں مجھے دیکھتے ہیں وہ لوگ، تو کہتے ہیں یار ہاں یہ بڑے میاں ٹھیک ہے، ان کو پیر صاحب بنا دو. کسی نے آفر کیا کہ 14 اگست ہے، آپ ایک بزرگ کی طرح دعا کر دیں، یہ کر دیں. تو مختلف جہاں میری ٹوپی اور داڑھی اور یہ واسکٹ سیٹ ہوتی ہے جس کام میں، وہ لوگ مجھے یاد کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کمپلیمنٹ ہی ملی ہیں. ایئرپورٹ پہ کہیں تھا تو 2 عورتیں جاری مسافر کا انتظار کریں، باتیں کریں، تو میری طرف اشارہ کر کے وہ کریں ارے یہ تو وہ ہیں ڈرامے میں نکاح پڑھاتے ہیں. تو مجھ سے بہت لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ڈراموں میں آپ نکاح پڑھاتے ہیں، ہمارے بیٹے کا نکاح ہونے والا ہے، انکل آپ نکاح پڑھا دیں گے؟ تو میں کہتا ہوں نہیں بیٹے، دیکھو یہ دین کا معاملہ ہے، اور میں ویسے ڈرامے میں کرتا ہوں، لیکن یہ کر دوں گا کہ جب آپ مولوی صاحب سے نکاح پڑھا لو گے تو میں دعا کر دوں گا، میں ایک بزرگ آدمی ہوں. اور سامعین اس کے ساتھ ہی آج کا سیر بین بھی اپنے اختتام کو پہنچا. مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن اجازت لینے سے قبل اب تک کی خاص خبریں. ایران کے وزیر خارجہ عباس آراغچی کا کہنا ہے کہ کسی بھی ملک کے اثاثے منجمد کر کے انہیں مستقبل میں کیے جانے والے غیر متعلقہ دعووں کی ادائیگی کے لیے استعمال کرنے سے ایک خطرناک نظیر قائم ہوگی. یاد رہے کہ امریکی صدر نے ٹروتھ سوشل پر جاری ایک بیان میں کہا تھا کہ آج کے بعد سے جہازوں، ان کے سامان تجارت، کارگو یا اس سے متعلق کسی بھی چیز کو پہنچنے والے تمام نقصانات کا معاوضہ ایران کے ان فنڈ سے ادا کیا جائے گا جو امریکہ کے قبضے اور کنٹرول میں ہیں. ان کا کہنا تھا کہ یہ ہرجانے بہت زیادہ بھی ہو سکتے ہیں،
लेकिन उनके ख्याल में यही सही कदम है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस अज़म का इयादा किया कि पाकिस्तान के लिए खतरा बनने वाले शिद्दत पसंदों के ढांचे जहां कहीं भी हों उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। सरकारी खबर रसा इदारे APP ने पाकिस्तानी फौज के शोबा तालुकाती आमा यानी ISPR की जानिब से जारी बयान का हवाला देते हुए बताया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ये बात जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में 20वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरुका से मुलाकात के दौरान कही। ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे अवाम की हिमायत के साथ साथ बलूचिस्तान में देरपा अमन के क़याम को भी यकीनी बनाएंगे। ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी और खित्ते में अमेरिकी अहदाफ पर ईरानी हमलों के नतीजे में आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मजीद इजाफा देखने में आया है। BBC फारसी के मुताबिक जुमे की सुबह एशियाई मंडियों में ब्रेंट नॉर्थ खाम तेल की कीमत $100 फी बैरल से तजावज़ करने के बाद $101 फी बैरल तक पहुंच गई है।